So first of all, we have the bearing of B from A. What does that mean? Bearing of B from A. From A का मतलब ये होता है कि you have to start from A. A से start करोगे और B तक जाओगे, which is 54, which is given. 132 is also mentioned. That is the bearing of C from B. B से ये दिया हुआ है इन्होंने, सही। कहता है मेलर वॉक्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी वॉक करता है, शी देन वॉक्स फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू ए। मेलर वॉक्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आपके पास गिवन है। जब एवरेज स्पीड का जिक्र होता है तो वी नो कि द फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, सही है। अब आपसे कहता है वर्क आउट द टोटल टाइम मेलर टेक्स, यानी यू हैव टू वर्क आउट ऑन द टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए आपके पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। इफ वी रीअरेंज द फॉर्मूला इट विल बी टोटल टाइम इक्वल्स टोटल डिस्टेंस over average speed. Over average speed. We have the value of average speed with us, but we don't have total distance. So for total distance, we have to calculate the length of AC, which I name it as x सेंटीमीटर। ठीक है, तो x सेंटीमीटर के लिए आपने जो है वो यहाँ पे फाइंडिंग करनी है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक चीज समझना बेटा, वी नो द रूल whenever the two lines are parallel, whenever the two lines are parallel in bearing, that means the interior angle of those two lines are supplementary. 90. Supplementary. What does that mean? Supplementary. That means if we have this angle as A and this angle as B, so that means A plus B, the sum of these two angles is equals to 180 degrees. Supplementary is always means 180 degrees, यानी 180 degrees का सम है इन दोनों एंगल्स को। अगर मैं ऐड अप करता हूं, मेरा सम जो है 180 degrees आना चाहिए। इफ let's say in case if we have the value of A which is 70 degrees, so I can calculate the value of B by subtracting A 110. from 180, right? So if A plus Yes. B is equals to 180 degrees and the value of A is 70, so we can calculate B by subtracting 70 from 180. So we have the value of B which is 110 degrees. So ये मेरे पास जो है वो कब कैलकुलेशन होती है, जब हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं। एंड इन द केस ऑफ बेरिंग, टू नॉर्थ आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, राइट? सो इफ वी कंसिडर द केस, ये हमारे पास हो जाएगा दिस 180 वन, minus 50. this one. These two knots are parallel, right? So if these two knots are parallel and we have 54 for the first one, and this can be calculated if we name it as small a. So Is this 120? we have to, yeah, we have to use the formula of supplementary angles, sum of interior angles. So it is a plus 54 equals to 180 degrees. What will you what will you get? 180 minus 54, क्या आंसर आएगा? 26. 126. 126 degrees, करेक्ट। सो इट्स 126 degrees। अब ये जब मेरे पास 126 degrees आ गया, आई नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल विच आई नेम इट एज बी डिग्रीज। एंड द रीजन बिहाइंड, वी नो कि जो भी मेरे पास एंगल होता है, सर्कुलर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 degrees, राइट? सो वी कैन हैव द कैलकुलेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस 132 which is equals to 360 degrees, right? So we have the value of 126. So B is equals 360 minus 132 and minus value of A, which is basically 126. So can you tell me the value of B? The value of Three, it's so why do you need the value of B? 360 minus 32 minus 132 minus 126. That is equals to 102 degrees. So the value Yes, of but why B, do you need the value of the inner? okay, we need the value of B because we need to apply the formula of cosine rule here, right? Because we need to find out the this length opposite to this angle, the length opposite to B. We need to find out this length, and we have the two other lengths, that is 3.6 and 8.4. So by using this B degrees, we can apply the cosine rule because this triangle is non-right angle triangle, right? So by using cosine rule, we can easily calculate the value of X. So if we apply the cosine rule here by considering this value of B, that is 102 degrees, so we have x square is equals to, rest of the two sides are 3.6 square plus 8.4 square minus 2 into 3.6 into 8.4. And then we have cos and angle is 102, angle B, which is 102 degrees.
By simplifying, you will get the answer of x. Clear? हाउ वी केम टू नो कि जो है हमने कोसाइन रूल लगाना है या साइन रूल लगाना है, तो उसके लिए आपने जहन में रखना है बेटा, व्हेन देयर इज अ डिस्कशन बिटवीन द टू एंगल्स एंड its corresponding sides. Corresponding is the most important thing. Corresponding sides. That means the angle and the side opposite to that particular angle, right? That side is known as corresponding side. So two angles and its corresponding side के बारे में जब भी discussion होगा, you have to use the formula of sine rule. And whenever there is a discussion of three sides, डिस्कशन मीन्स के ऑल ऑफ द थ्री साइड्स मस्ट बी गिवन, इट्स नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये होता है दो साइड गिवन है, एक अननोन है, लेकिन वी आर डिस्कसिंग द थ्री साइड्स बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन ऑल्सो। ठीक है, तो डिस्कशन ऑफ द थ्री साइड्स एंड वन एंगल, एनी ऑफ द वन एंगल, Okay. one angles, so then you have to use cosine rule. So here cosine rule. Here cosine rule, reason behind we are discussing the three sides and the angle opposite to that particular side. राइट अच्छा, अब देखो इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, वो ये कि वॉट एवर एंगल यू यूज इन कोसाइन रूल, वॉट एवर एंगल यू यूज इन कोसाइन रूल, the side opposite that particular angle must be written on the left hand side. That is the most important thing. Whatever angle you are using, बेशक आप 102 यूज करते हो या कोई और एंगल, लेट से सी पे कोई एंगल मेरे पास गिवन होता है एट दिस प्लेस, यहाँ पे कोई गिवन होता है एंगल So, जेड, तो ये जो आपके पास इसके सामने वाली साइड है, दैट विल बी यूज्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला। सही है? so the opposite side. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो हमने एंगल बी यूज किया यहां पे, तो इसके ऑपोजिट साइड एक्स थी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस एक्स हियर। यहां पे ये एक्स आपके पास आया है, Okay. राइट अच्छा, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो भी अननोन साइड होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आती है, ऐसा नहीं होता, राइट? दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू कि हमेशा अननोन साइड विल नॉट बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो एंगल आप यूज करोगे ना, जो भी एंगल यूज करोगे, सो द साइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एंगल मस्ट बी रिटन वेदर इट इज अननोन और नोन, और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको देखते हुए आपने जो है वो हमेशा वो वाली साइड यूज करनी है। ठीक है, अच्छा ये आपके पास हो गया बेटा, अब आपने जो है वो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सही है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी, और जो भी Okay. वैल्यू आपके पास आएगी और उसके बाद आप इसे स्क्वायर रूट करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए सी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू विल गेट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करना है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, वो आपके पास आंसर आएगा। क्लियर? Okay. So we have the value of x basically which is equals to 9.8, right? मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ because of lack of space, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। The value of x is 9.8 kilometer, which is basically your AC. Now we, since we have to use this formula which is most important because we need to find out the time here, तो ये formula मैंने यूज करना है, तो इसके लिए मुझे total distance चाहिए, so we have to add all the values. So for total time we use the formula addition of all the values of the distance, that is 3.6 plus 8.4 plus 9.8, all of the three values इन सबको ऐड करोगे divided by the एवरेज स्पीड जो गिवन है आपके पास क्वेश्चन में विच इज 6 किलोमीटर पर आवर, सो इट विल बी 6 ओवर हियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। Okay. When you will simplify it you will have the time which is basically equals to 3.63. That is the answer, but this answer is in hours and they ask you to write down the answer in hours and minutes, both of them. So we know, so हमें ये पता है बेटा यहाँ पर कि हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, यहां पे आ जाएगा, ओके। तो हमें ये पता है कि हमारे पास 3.63 आवर्स है, विच मीन्स वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म 3 आवर्स प्लस 0.63 आवर्स, correct, because whole of the time is in the hours ना, so we can write Yes. it in 0.63 hours as well. तो 3 hours तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, we need to convert this 0.63 into minutes. So if we want to convert this 0.63 into minutes we have to multiply it with 60, right? Got my answer? So
First of all, 0.63 times 60. So 0.63 times 60 will give you 37.8, which is 8. basically approximately equals to 38 minutes. So Yes. basically the time is 3 hours, 38 minutes. This will be the answer. This will be your Okay. final answer. So for the first thing is, here are the first four terms in an arithmetic sequence, and the last term is x over here. This is your condition. The sum of the terms of the sequence is 7,260. Find the value of x. That means first of all we need to um, apply the formula, right? So the first thing is, the formula for the last term in the arithmetic sequence is Tn equals a plus n minus 1 times d. Okay. So, and the second thing is, we have the condition of Sn over here, and we know the formula of Sn, that is n over 2, 2a plus n minus 1 times d. We So if we, already know D is 4. exactly, so if we substitute the formula here, so what it will be? It will be 7,260. That is the value of Sn. So 7260 equals n over 2 will be written as it is, because we don't have the number of Yeah. terms, right? And then 2 And brackets 3. then we have 2 and then 3 and then plus and minus 1 will be written as it is, and the difference is given, which is 4. basically 4. 7 minus 3, which is 4. So if we further simplify it, it will be 7,260 times 2. Yes. So So it will be 14,520 is equal to n. 14,500 and then 6 plus 4 and minus 4, correct? So Yeah. 14,520 equals n, and then 2 plus 4n. When we will solve it, 14520 equals 2n plus 4n square, right? And then 4n And plus 2n minus we have 14,520 is equal to 0. hmm. So if we take 2 common from the whole equation, what it will be? It will be 2, and first of all we can rearrange it now. So it will be 4n 2n square plus squared. 2n minus 14520. And if we take 2 common from whole of the equation, it will be 2n square plus n and then minus 7,260. Is that so? Yes. And then you can factorize and put in one bracket 2n plus 121, and in the Mhm. other bracket n minus 60. Right. Exactly. So we have plus 121 and the other bracket is n minus 60 equals to 0. Right? So we have the two answers. First one is n equals to 60, Minus 121 over 2. and second one is, if we write down in the form of decimal, it will be negative 60.5. And since they can't be negative, n is equal to 60. Correct. Because the number of term will always be positive here. And we have the last term, we have to apply the formula of Tn. So it's Tn is equals a plus a is 3. That's your first term, plus n minus 1, that means 60 minus 1, and d is basically the difference which is given in the question, which is 4, right? So the value of Tn is basically x here, so 3 plus 59 into 4. So 3 plus 236, and then it's 239. So final answer is, the value of x is basically equals to 239. So there is no need to calculate the value of n by using minus 60.5. The reason behind, we know the number of values will always be the integer value. The quantity will Yes. always be the integer value, right? In question, it says a bag contains 10 cent coins and 20 cent coins. Joseph takes a random coin from the bag, record its value, and replace it in the bag. That means it's the question of replacement. The first thing. He then takes a random coin and then replace it back. ये भी आपके पास replacement का question है. So Joseph means finds the mean value of the two coins. Two coins आपके पास हैं. ठीक है, इसकी mean value जो है वो आपको find out करने के लिए कह रहे the probability that the two coins have the mean value of 10 cents is 49 over 121. So if we want to find out the mean value or the probability of the one coin, so we have to take the square root of 49 over 121.
सो वी विल बी हैविंग द आंसर ऑफ 7/11 बिकॉज टू कॉइन्स के लिए हमारे पास जो है वो क्या है, 49/121। और अगर मुझे वन कॉइन के लिए यहाँ पे चाहिए, वन कॉइन ऑफ 10 सेंट्स, तो इसका आ रहा है 7/11। राइट, वी नो कि हमारे पास दो कॉइन्स हैं यहाँ पे, टू टाइप के कॉइन्स हैं, एक आपके पास 10 सेंट्स के और एक 20 सेंट्स के। अगर 10 सेंट्स के जो कॉइन्स हैं उनके एक कॉइन की वैल्यू 7/11 है, तो 20 सेंट्स के जो मेरे पास कॉइन है उसके एक कॉइन की वैल्यू क्या होगी? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम वन, बिकॉज वी नो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू वन। और हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, 10 सेंट्स और 20 सेंट्स। सो 10 सेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वन कॉइन ओनली, सही। तो 10 सेंट का एक कॉइन प्लस 20 सेंट का एक कॉइन इज इक्वल्स टू, इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितने के बराबर होगी? वन के बराबर One. होगी। एग्जैक्टली, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 सेंट्स ऑफ वन कॉइन, so it means we have to subtract it from 1 minus the probability of 10 cents. Yes. राइट, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, एंड वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 सेंट विच इज 7/11, सो आंसर इज 4/11। ये मेरे पास आ गया। सही है, आपसे कहते हैं वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी दैट टू कॉइन्स हैव द मीन वैल्यू ऑफ 15 सेंट्स। तो इसका ये मतलब है कि लेट से मैंने बैग में फर्स्ट जो है वो हाथ डाला और मेरे पास पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट, यहां बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की और ये बात करते हैं सेकंड अटेम्प्ट की। दो अटेम्प्ट्स करने हैं हमें, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट करना है और सेकंड अटेम्प्ट करना है। तो अगर मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करता हूं, मैंने बैग में हाथ डाला, मेरे पास 10 सेंट का कॉइन आ गया, और उसके बाद मैंने जो है वो दूसरी दफा बैग में हाथ डाला तो मेरे पास जो है वो 20 सेंट का कॉइन आ गया। राइट, दीज आर द टू अटेम्प्ट। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 सेंट का कॉइन आ जाए मेरे पास, और सेकंड अटेम्प्ट में 10 सेंट का कॉइन आ जाए। दिस आर ऑल्सो पॉसिबल ना, ये भी तो हो Oh, so सकता है ना। probability is times two हो जाती है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू करना है, इसलिए टू करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ जितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं सब कंसिडर होती हैं। राइट, तो ये हो Oh, जाएगा मेरे पास 10 सेंट के लिए हम क्या करेंगे, 7/11 एंड 11. मल्टीप्लाई बाय 4/11, दैट्स द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ये नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास, एंड दिस और वन इस इज योर बार सेकंड टू लगा लो. पॉसिबिलिटी। प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा 4/11 एंड देन वी हैव टाइम 7/11। गॉट माई पॉइंट? तो अब मैं इसे तो फर्दर, फिर तो फिर मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 50। 56 over 121. या, सो दैट विल बी योर आंसर। For question number 21, they ask you to find out the volume of triangular prism. So formula for triangular prism is area of cross section times diagonal height. Diagonal height, or we can say the height of a prism, right? So if we have the area of cross Yes. section, area of cross section is basically the area of this 2D shape, this one. Hmm. So area of 2D shape means we have to apply the formula of the area of triangle, which is a right angle triangle, and the formula for this one is half into base into height. That is the area of a Yes. right angle triangle. So we have right now we have 28 centimeter, which is your hypotenuse, and 30. We need to find out both opposite and adjacent, right? So we can use the formula of sine theta first. So sine 30 is equals to opposite over hypotenuse, which is 28. So sine 30 is 0.5. So 0.5 times of 28, which is equals to opposite, which is equals to 14. मैंने कोई और तरीके से किया. Doesn't matter, कोई problem नहीं है. Then we have the value of either we can apply the Pythagoras theorem here, कि मैं यहाँ पे जो है वो Pythagoras theorem यूज कर लूँ और मेरे पास opposite और hypotenuse given है, I can calculate adjacent by solving it, or I can directly apply cos theta as well. So cos theta अगर मैं यूज करता हूँ, cos 30 is equals to adjacent over hypotenuse, which is 28. The value of cos 30 is 0.866 times 28, which will give you the value of adjacent. तो यहाँ पे जो adjacent की आपके पास वैल्यू आएगी, which is 24.2. That is the value of DE.
ये आपके पास आ गया 24.2, ये आपके पास आ गया 14. नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज 14 इंटू 24.2. आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बी 2, 1 एंड 7. तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 24.2. So 7 times 24.2, which is equals 169.4. Now we need to find out this diagonal length of a, this is basically the length of a prism. Prism. Exactly. So its diagonal height. So we need to calculate this one, and we can consider the whole triangle, which is also a right angle triangle. That is triangle AFD. Yes. So for triangle AFD, we need to 53 find squared out, minus the ऑपोजिट, लेट से. सो ये आपके पास हो जाएगा 53 होल स्क्वायर इक्वल्स 28 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इफ वी नेम इट एज एक्स. तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा, दैट इज 53 स्क्वायर minus 28 square, which will give you 2025, and taking the square root of the value will give you 45. So the answer of x is equals to 45. Now substituting these values to calculate the volume, it will be 169.4, that is the final value of area of cross section, times 45. So we have 45 times 169.4, which is basically 7,628. 28. Right. So it's 7,638. That's your answer. We have Yes. question number 22. In question number 22, it says P is a point on a circle with a center at origin, that is 0, comma 0, and the coordinates of P are 8, comma minus 10. Okay. Let's consider a circle. Small circle बना रहा हूं एक मैं, like this. सही. So, इसका एक सेंटर है. इसको एक मिनट रुको, थोड़ा सा स्मूथ इसे बना लेते हैं. ओके, दिस वन. सो अब मेरे पास यहाँ पे जो है बेटा सेंटर है, एंड सेंटर इज हैविंग द कोऑर्डिनेट दैट इज 0, comma 0, बिकॉज इट्स एट ओरिजिन. एंड पॉइंट P लाइज ऑन अ सर्कल, इट कैन बी एनीवेयर. लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P. अब वो ये कहता है P पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 8, comma minus 10. ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं. okay. नाउ अब इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू O, दिस लाइन इज नोन एज अ रेडियस, राइट. तो ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस कहलाएगा. अब हमने जो है वो इस लाइन की, लेट से सबसे पहले हम करते हैं ग्रेडियंट कैलकुलेट, क्योंकि यहां पे उसने ये कहा द लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव टू ड्रॉ टेंजेंट, राइट. सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ पी ओ. सो द ग्रेडियंट ऑफ पी ओ इज y2 minus y1. Over x2 minus x1. Correct. So we can make any of the value as x1, y1 and x2, y2. तो अब आपके पास यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपके पास बेटा आ जाएगा. लेट्स से इफ दिस वन इज योर x1, y1, सो ये हो जाएगा आपके पास 8 ओवर 0. What? 8 minus माइनस 10 ओवर 8, सॉरी, माइनस 10 ओवर 8 हो जाएगा आपके पास. बिकॉज 0, 0 तो ये जीरोस आ जाएंगे ना कंप्लीटली, ये तो खत्म हो जाएगा. तो आपके पास जो ग्रेडियंट आया दैट इज माइनस 10 ओवर 8. और अगर आप इसे फर्दर minus सिंप्लीफाई 5 करते हो over इट विल 4. बी माइनस 5/4. दैट्स द ग्रेडियंट ऑफ द रेडियस पी ओ. सही. अब हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं. जो लाइन आपके पास बेसिकली क्या है, Tangent. एग्जैक्टली exactly. टेंजेंट लाइन आपके पास, डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, अ लाइन विच इज बेसिकली विच टचेज द सर्कल एट वन एंड ओनली. करेक्ट. दैट पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज अ टेंजेंट. तो तो आपके ये perpendicular हो गई. हाँ, तो वो हमेशा जो होती है बेटा वो आपके पास
परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्रीज फॉर्म कर रही होती है, याद रखना। ठीक है। इसका मतलब है लाइन एल का ग्रेडियंट है 4/5। तो अब आप क्या करोगे, ये वाली जो आपके पास है, दिस लाइन, इट मेक्स द 90 डिग्रीज विद द रेडियस, ये आपके पास 90 डिग्रीज बना लेगा। तो ये आपके पास हो गया बेटा 90 डिग्रीज। तो अब ये जो हमारे पास लाइन एल है, दिस इज योर लाइन एल, इस लाइन एल का जो ग्रेडियंट है आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस m1 टाइम्स m2 इक्वल्स -1, इट विल बी 4/5। ये आपके पास 4/5 हो गया। अब ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P में हमारे पास कोऑर्डिनेट है, दैट इज 8, -10। इफ वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन L, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L आपके पास क्या हो जाएगा, y-y1 इक्वल्स m इंटू x-x1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा y-y1, दैट मीन्स माइनस माइनस +10 इक्वल्स m इज 4/5, एंड x-8 आपके पास ये आ जाएगा। करेक्ट। ठीक है। ये आपके पास आ गया, सही है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे ये कहता है, यू हैव टू वर्क आउट द लेंथ ऑफ आर क्यू। सही। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे कहता है L क्रॉसेस द x एक्सिस एट द पॉइंट एंड क्रॉसेस द y एक्सिस एट पॉइंट R। यानी जो लाइन L है, ये दो आपके पास एक्सिस पे पास कर रही है, x एक्सिस पे ही पास कर रही है और y एक्सिस पर भी पास कर रही है। तो हम इसकी शेप को थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये शेप है, इफ आई ड्रॉ हियर लाइक दिस, चलो थोड़ा सा यहाँ पे लेके जा रहा हूं मैं डायग्राम को बेटा। ये आपके पास हो गया, सही है। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास मेन एक्सिस था और वो एक्सिस था ये वाले दो, ये दो एक्सिस थे। ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आ गया आपके पास लेट से एक्स एक्सिस। सही है। अब हमारे पास सही। जो लाइन एल है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक्स और वाई पे टच कर रही है। जब उसने एक्स एक्सिस को टच किया, इट टचेज एट पॉइंट क्यू, और यहाँ पे जो टच कर रहा है, इस पे आर पे टच कर रहा है, और वो कह रहा है आर और क्यू की जो है मुझे लेंथ बता दो। तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन आपकी आई है, आपको एक बात का पता है कि यहाँ पे जो क्यू पे कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे डेफिनेटली, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी लेकिन वाई 0 होगा। और अगर आर पे बात करेंगे तो आर पे कोई ना कोई वाई की वैल्यू होगी लेकिन एक्स 0 होगा। X0। हाँ। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। तो अब मैं यही काम करने लगा हूं यहाँ पे कि अब मैं अपनी वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर लेट से कि मैं यहाँ पे जो है बात करता हूँ कि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y की वैल्यू 0, यानी q के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पॉइंट q की बात करता हूँ और अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कोऑर्डिनेट x, 0, कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, इन दिस इक्वेशन विच आई फाउंड आउट। ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 0 + 10 इक्वल्स 4/5, एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी एज इट इज -8। करेक्ट, ऐसे ही आ जाएगा। मैं कंफ्यूज, तो आप सब्स्टिट्यूट किया क्यों किया? हम्म। मैंने बिल्कुल सब्स्टिट्यूट किया, और सब इसमें यहाँ पे x अननोन है, तो x मैंने फाइंड आउट करना है, y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया मैंने। सही है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो x का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 20.5। ओके। ये x की वैल्यू आ रही है। सही है। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को रीड करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 20.5, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट r। तो r के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट r में आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0, y। करेक्ट। अगर मेरे पास यहाँ पे 0, y है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स कहाँ अगेन सब्स्टिट्यूट करने हैं, इन दिस इक्वेशन। तो ये आपके पास हो जाएगा y + 10 विल बी रिटन एज इट इज इक्वल्स 4/5, द वैल्यू ऑफ x इज 0, एंड देन तो 0 - 8। तो हाँ। विच विल गिव यू -8। सही। तो अब आप इसे, सही। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। 1 + 10 is सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ y एज वेल, y का भी आंसर आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली शायद नेगेटिव आंसर आ रहा है, वेरीफाई करो, क्या -16.4 समथिंग आ रहा है। वैल्यू ऑफ y इक्वल्स -16.4, ये y आ गया।
So if we read the coordinate, it will be 0 comma minus 16.4. ये coordinates आ गए। G minus 16.4. ठीक है। अब देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक आपके पास आर के कोऑर्डिनेट ये रहे, और ये रहा आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट। दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। वो ये कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ आर क्यू। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या आखिर में लगा दूंगा, एट द एंड आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। Yes. RQ. So सो डिस्टेंस इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। So after calculation and substituting the value, we will be having the answer of distance, which is equals to 26.4. So that is basically the distance of RQ. अच्छा, जब भी हम जो है बेटा यहाँ पे अपनी सिमिलैरिटी की कंडीशन लगाते हैं, तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ सिमिलैरिटी, दैट इज एरिया वन ओवर एरिया टू इक्वल्स लेंथ वन ओवर लेंथ टू होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम जो है वो वॉल्यूम की कंडीशन डिस्कस करते हैं, वी वन ओवर वी टू इक्वल्स एल वन ओवर एल थ्री एल टू होल क्यूब। और ये जो आपके पास लेंथ है, वी कैन टेक दी हाइट ऑल्सो, वी कैन टेक दी रेडियस ऑल्सो। ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास एरिया गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इफ यू कंसिडर सॉलिड ए एंड सॉलिड बी, तो ये आपके पास हो जाएगा 7776 डिवाइडेड बाय 486, विच इज इक्वल्स टू लेंथ वन ओवर लेंथ टू होल स्क्वायर मेरे पास है। ठीक है। अब मुझे लेट से कि लेंथ वन और लेंथ टू की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो बेसिकली हाइट है। तो मैं अगर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करता हूं, so what it will be? It will be square root of 7776, which is okay, इसको हम लिख लेते हैं इसमें square root and then we have this one. So 7776 divided by 486, that is equals to 4. ये 4 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, एंड देन वी हैव हाइट 1 ओवर हाइट 2। करेक्ट। ये आपके पास हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अगर कंपैरिजन करता हूँ हाइट वैल्यूज से, या मैं जाता हूँ, चलो ये मेरे पास हाइट वन ओवर हाइट टू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज को उठा के सब्स्टिट्यूट करता हूँ वॉल्यूम की कंडीशंस में यूज करते हुए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे सिनेरियो, वॉल्यूम वन ओवर वॉल्यूम टू इज 8 रेस टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर x प्लस 4 इक्वल्स हाइट वन ओवर हाइट टू में क्या लिख लूंगा यहाँ पे 4 ओवर 1। आई कैन राइट लाइक दिस ना, 4 ओवर 1 होल क्यूब लिख सकता हूँ। अब मुझे ये पता है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंडाइसिस रूल, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज इन पावर विच इज इन इंडेक्स, वी नीड टू मेक द बेस सेम। सो दैट मीन्स 8 जो मेरे पास बराबर होता है वो 2 रेस टू द पावर 3 के बराबर होता है। सो इट विल बी 2 रेस टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 2 रेस टू द पावर x प्लस 4 इक्वल्स 4 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 64। इज इट राइट? yes. ओवर 1 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पे वी नो व्हेन द बेसिस आर सेम वी कैन यूज द कंडीशन ऑफ इंडाइसिस। indices, so it will be 3x minus x and minus 4, these two power which will come in the numerator with the change in sign equals to 64. So it will be 2 raised to the power 2x minus 4 equals, and 64. exactly equals to 64, but we need to change this 64 in the form of indices as well by using the base 2. So 2 raised to the power 6 is equals to 64, like Yes. this. So when the bases are same, we can directly equate the powers. अब मैं पावर्स को इक्वेट करवाऊंगा, सो व्हाट इट विल बी 2x माइनस 4 इक्वल्स 6, so 6 plus 4 is 10 and the value of x is equals to 5. This is faster. मैंने बहुत लंबा. ठीक है। ये मेरे पास सिंपल क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ x मेरे पास जो आ गई वो 5 के बराबर आ गई। ठीक है। अब देखो हमने काम क्या करना था, हमने काम ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। सो 8 रेज टू द पावर 5। So if we discuss about volume A, volume of solid A, so that is 8 raised to the power 5. 8 Okay. power 5 which is basically 32768. ये खत्म हो गया। If we want to find out the volume of solid B, that is equals to
2 power 5 plus 4 9, so that is equals So 5 512. 512, right? अब हमने जो है वो लेट से हाइट ऑफ सॉलिड ए ये फाइंड आउट करना है, सो इट्स 3 रेज टू द पावर एक्स मींस 3 रेज टू द पावर 5, सो 3 पावर 5 विच इज इक्वल टू 243, बिकॉज यहाँ पे जो 3 रेज टू द पावर 5 है इसमें हम जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सो 3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243। नाउ वी हैव दिस वैल्यू। अब हम जो है बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है, अब मैं हाइट और एरिया को कंपेयर कर सकता हूं। तो अब मैं यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करता हूं लेट से, तो एरिया मेरे पास था यहाँ पे 7776 डिवाइडेड बाय 486 इक्वल्स, और उसके बाद आपके पास जो है 3 रेज टू द पावर एक्स जो है दैट इज 243 हियर, एंड दिस वन इज Yes. अननोन विच आई नेम इट एज वाई। ठीक है, तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा 243 टाइम्स 486 divided by 7776, which is equals to, Which is ओके यहाँ पे हम एक चीज मिस कर गए, स्क्वायरिंग हम मिस कर गए, here we are having the square as well। तो ये आपके पास हो जाएगा 243 का स्क्वायर होगा पहले, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास किससे, 486 से, ये हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर आपके पास यहाँ पे चल रहा होगा, एंड देन डिवाइडेड बाय 7776, सो वी हैव द वैल्यू 3690.56, and if we take divided. the square root, and if we take the square root of the value, that is equals to 60.75. That is your height, that is your value, which is the same answer as you got.